सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल के लिए. As we all know, everything is hard before it's easy. A very warm good afternoon to everyone, respected director Mr. Shishir Dikshit sir and all my dear friends. Today we have Aishwarya Chand. She is from a small town of Gopalpur from Gorakhpur, and she has cleared her serious written examination in the first attempt, which was last April, and got recommended from the 19 SSB Allahabad, which was from 15 to 19 November. Ladies and gentlemen, a huge round of applause please. It is really an honor for the Centurion Defence Academy. Also, she has a civil background. In her SSB, the reported people were 137, screened in were 40, and recommended were 11, of which Aishwarya Chand was one of them. So, as per our custom, we would do her tika, and please do not stop clapping. Given AFCAT, in which fortunately she cleared it in her first attempt, but unfortunately she got screened out. But as far as we all know, the universe has already written the poem that we are planning on writing, so maybe God had better plans and now she is recommended. Ladies and gentlemen, please a huge round of applause for her. Now it's time for the sweets. Good morning, friends. Talking about my experience of SSB, it was very good. And honestly, I'm not perfect in anything. I made blunders in screening also, but I didn't lose hope. I overcome that thing. Like, the biggest blunder a person can do is that I cutted 1% chance in narration and started GT. But what I did was like, I gave her chance and I inculcated her points in my stories. Also, I have taken all other points and made a common group story. Convinced everyone that it is a neutral slide and no one can make a perfect story about that. So I included every point, like skill development was there, like internship was there. So I made internship in skill development, like this. Talking about after getting screened in, it was a very good day, as I wasn't expecting that I would be recommended or I will be screened in also. So from second day, I dropped everything what I have practiced. मुझे सर की बातें याद आ गई कि be honest, don't inculcate those things, like don't be extraordinary, just view the slide and instinctive जो भी thought आए वो तुम बोलो. सर ने मुझे बोला था honesty and integrity और most favorite thing, मतलब उससे तुम रिकमेंड हो जाओगे. और हर एक इंसान का एक कोई ऐसी चीज़ पॉइंट होता है जिससे उसे लगता है कि वो रिकमेंड हो जाएगा, बस उसे आगे लेके आए. सेकेंड डे में मैंने स्टोरीज जो बनाई वो पूरी रियल लाइफ बेस्ड. जो भी मेरे पास पिक्चर्स आ रही थी उसमें मैंने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर मैं रिलीफ डाल दूँ या कुछ डाल दूँ या बहुत ज़्यादा एक्शंस दिखा दूँ. मैंने अपनी रियल लाइफ में जो मैंने किया है, लाइक मैं अगर रोड ट्रैक क्लब में ज्वाइन किया है, मैंने बोटानिकल सोसाइटीज़ ज्वाइन करी हैं, और फैमिली लाइफ जो है उसको भी मैंने उन स्टोरीज़ में डाला और सारी स्टोरीज़ कंप्लीट हुई. वैट भी मेरे सारे कंप्लीटेड थे. कुछ जगह पे छूट गए थे बीच में, बिकॉज टाइमिंग का बहुत वो होता है कि आप जैसे ऊपर देख रहे हो वैसे चला जा रहा है, तो 2-3 छूटे थे बस. और SRTs मेरी सिर्फ 4 छूटी थी. और साइक मेरा काफ़ी अच्छा गया था. उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू था वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स चला था, क्योंकि मेरा जो था एक के बाद एक सिनारियोज बिल्ड हो रहे थे. लाइक मैं ऑनेस्ट थी, हर चीज़ में ऑनेस्ट थी. अगर उन्होंने पूछा कि आपने कब सोचा कि आर्मी में आना है आपको, मैंने बोला सर जब मैं अपनी बहन के पास गई तो मुझे लगा मेरी नॉलेज बहुत गड्ढे में है. आई लिटरली यूज दीज वर्ड्स.
और फिर मुझे लगा कि मुझे नॉलेज गेन करनी चाहिए, और जब मैंने नॉलेज गेन करी तो मुझे CDS एग्ज़ाम सामने दिखा, और जब मुझे CDS एग्ज़ाम सामने दिखा तो मैंने फिर अब जब मेहनत करने लगते तो आपका एस्पिरेशन बन जाता है, एंड नाउ इट इज़ माई एस्पिरेशन। फिर उन्होंने और भी क्वेश्चंस पूछे कि आपकी बहन परमानेंट जॉब में है तो आप ये शॉर्ट सर्विस कमीशन क्यों ले रही हैं, कोई और जॉब को देखिए, नॉलेज तो उसमें भी चाहिए। तो मैंने बोला सर अपनी बहन से मैंने एक और चीज़ सीखी है कि उन्हें IAS बनना था, एंड नाउ शी इज़ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर जॉब। वो अपना 100% नहीं दे पाएंगी, जितना उन्हें देना चाहिए था उतना 100% नहीं दे पाएंगी। तो मैं वो चीज़ चाहती हूँ जो मुझे सेटिस्फाई करे। और फिर उसके बाद मेरी रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो बिल्ड होते होते सब क्वेश्चन सामने आए थे। और फिर उसके बाद इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया था। वहाँ के डिप्टी प्रेसिडेंट और एक और ट्रेनी सब लोग उन्हें बोल रहे थे, बट ही वॉज नॉट ट्रेनी, क्योंकि जब हम कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वो एकदम सेंटर में बैठे थे। और फिर उसके बाद जो GTOs गए, GTOs में बहुत ही फिश मार्केट तो बनती ही है, पर ये है उस टाइम पे आपको काम रहना है, ठीक है, अपने पॉइंट्स रखने हैं, बट ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को आप बढ़ावा दो कि फिश मार्केट बन रहा है तो और फिश मार्केट बनाओ। लेक्चरेट में फॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया था। चारों के चारों टॉपिक ऐसे थे कि मैं इस पर कितना भी बोल सकती हूँ मेरे पास। और मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे 3 मिनट में कंप्लीट करना है। मुझे एक ऐसा टॉपिक मिल गया था जो मैं समझा सकती हूँ बहुत अच्छे से। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो मैंने नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी सब में डिफरेंस बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने डिटेल में बताई। फिर GTO की बात करें तो GTO सर ने एक मिनी इंटरव्यू भी लिया था उसमें, तो वो ऐसे इनफॉर्मल था। कॉन्फ्रेंस में तो मुझसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था ज़्यादा, बस ये पूछा गया था कि कैसा था सब चीज़। मैंने बोला सर फूड में चेंज ऑफ टेस्ट था, तो इस वजह से मुझे फूड में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई, पर अब आई एम ओके। सर आपने देखा ही था जब मैं फर्स्ट डे आई थी मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे इतने स्टेज में मैं सबके सामने बोल रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं था। बस लाइक हाथ कांपने लगते थे। पहला PPTT में तो मैं नॉट रिकमेंडेड थी, फिर सेकेंड थर्ड में मैं रिकमेंडेड थी, एंड लास्ट वाले में मैं डाउटफुल थी। एंड सर ने एकदम सही जजमेंट पास करी थी। मैं FCAT की स्क्रीनिंग में गई और मैं आउट हो गई, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड स्टोरीज बनने लगी थी। मैंने खुद बाद में रियलाइज़ किया जब मैंने सोचा कि मैंने क्या क्या स्टोरीज बनाई और सर ने कब मुझे रिकमेंड किया कब नहीं रिकमेंड किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम मैं बहुत मैनिपुलेट कर रही थी स्टोरीज़ को। फिर उसके बाद मैंने फिर अपनी स्टोरीज जैसे सर मैंने इतने सारे लोगों का जैसे NDRF वगैरह के बारे में पढ़ने लगी कि ये लोग कैसे वर्क करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर उसको अपने स्टोरी में डालने लगी। पर मैं थोड़ी हूँ NDRF में कि मैं उनकी डिटेल्स डाल रही हूँ। या मैं कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ने लगी, वो कैसे वर्क करते हैं, फिर कोई भी इंसान दिख रहा है मैं उसे कोस्ट गार्ड बना दे रही हूँ। सर ऐसा हुआ है कि जो भी मेरे इंटरव्यू हुए, तीनों इंटरव्यू जो हुए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जैसे सर ने जो मुझसे मिलिट्री नॉलेज के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे वो मेरे आए हैं, और पर्सनल लाइफ सर के तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आए ही थे। और एयर कोमोडोर सर ने, आपको पता ही है कि मैं उनमें रो पड़ी थी तो उसमें मुझे ये लगा कि जो चीज़ें हैं इनको कॉन्फिडेंटली कैसे बताना। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूंगी उन चीज़ों को, मैंने सोचा बताऊंगी मैं। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो हैं लम्हा खुशी का। NDA में टोटल 19 वैकेंसीज है गर्ल्स के लिए, और बहुत प्राउडली आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस साल NDA 149 के लिए सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी ने टोटल 7 रिकमेंडेशंस दिए हैं। 19 सीट्स फॉर NDA एंड 7 सेंचुरियंस प्राउडली रिकमेंडेड फॉर द वेरी सेम वैकेंसी। क्या आप भी बनना चाहते हैं सक्सेस का हिस्सा? आज ही ज्वाइन कर सकते हैं 21 डेज ऑफ SSB प्रोग्राम अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। कॉल करें 9794977776 पर। थैंक यू, जय हिंद।